Hello everyone and welcome to this series of expert talks by newmomlife.com. Pregnancy should be by choice and not by chance, and that's where contraception comes in. If you also wish to know everything about contraception, right from what is contraception to the different types of contraceptive methods available in India to the one which will work best for you, then do listen to this expert talk with none other than Dr. Swapnanjali Avhar from the Avhar Maternity Hospital, Nasik. She explains everything about contraception that you need to know. So stay tuned for a series of videos in the contraception category. So let's get to interact with Dr. Swapnanjali Avhar. Hello ma'am, how are you? I'm fine, Gitika. How are you? I am absolutely fine, ma'am, and thanks for connecting with us once again on this one of the most important topics of today that I think is in the minds of each and every couple, the contraception. So first, ma'am, please tell us that why there is a need to discuss about contraception. Why is it so important for all of us? Gitika, first of all, thank you for calling me here. Thank you for discussing this, I would say, the hottest topic in women's life, actually. The thing is that, Gitika, that there have been studies and there has been a consensus on this that I'm talking about the stats in India, only 54% of couples, they follow some or the other contraceptive methods. Literally, I would say that contraceptive illiteracy is very prevalent in our society, and because of this, we see a steep rise in the rate of abortions, the first trimester abortions, second trimester abortions, because of either not using the contraceptive method or using it incorrectly, which leads to failure. So we see so many patients landing up in this situation. So I'm sure like this interview of ours will help many people know their fertility. So thank you for inviting me here and honoring me. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. And you are absolutely right in your words. Contraception is really important these days. And actually, every couple is looking out for some methods in this regard. So, ma'am, let's start our discussion with what exactly is contraception. Okay. So, coming upon this topic, when we talk about contraception, somewhere first we need to understand what conception is, because obviously when we know what conception is, then we know the methods to prevent this. So we'll just see what conception is first. Conception in a female during her reproductive period, reproductive years, that is as and when the periods starts. So right from then, every month this menstrual cycle is going on. We call it as a cycle of 28 to 30 days. And that is when uterus is actually, the female body is actually preparing for a baby, preparing for conception every month. Right. So this literally starts that early. And I think the first group of people who need to be educated about this are teenagers, whom the periods, menstrual cycles have just started, because when they come to know about this reality, about these facts, then obviously they would be knowing how to take care of their fertility and what all precautions they should be taking later on in life. So conception is when we talk about it simply, it is just the union of the male and female gamete. Is the female egg and the male sperm, when it unites, form an embryo. That moment is called as, that process is called as conception. Now, conception. Now, to understand this in more detail, I would like you to share this female internal organ picture. Right, ma'am, right. In which I'll be able to show how exactly all this thing works
Gitika, see, this is the female internal organs, the female Right, genital ma'am. organs. This here is the uterus. I think I'll be using some non-medical terms also, some layman words, so that everyone can understand this. And also we'll be using another languages in support for better understanding. Right, ma'am. Yes. So ये बच्चेदानी होती है. This is the Yeah, uterus. yeah. यहाँ पर एक्चुअली जिसके अंदर एक्चुअली बेबी ग्रो करता है, तो गर्भ बढ़ना जो शुरू होता है वो बच्चेदानी के अंदर होता है, यूटेरस में. इसके नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं तो योनि मार्ग है, जिसे हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में वजाइना कहते हैं. जी मैम. दिस इज वेयर द रिलेशन इंटरकोर्स टेक्स प्लेस. ओके, यहाँ पर बच्चेदानी जो है, इसका जो ओपनिंग होता है, इस पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं. ये कैविटी होती है जो अंदर की खुली जगह होती है, जहाँ पर एक्चुअली गर्भ बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पे गर्भ बढ़ने के लिए जगह मिलती है. दोनों साइड से अगर आप देखें तो दोनों बाजू में राइट एंड लेफ्ट हमें ट्यूब्स नजर आते हैं, नलिकाएं नजर आती हैं. इनका काम सिर्फ गर्भ जो तैयार हुआ है उस गर्भ को अंदर बच्चेदानी तक लाने का काम होता है इनका. सो उनका काम सिर्फ एक चीज यहाँ से वहां पहुंचाना है. इसके अंदर बारीक बारीक से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, इसको सीलिया कहते हैं, जो जैसे हम काई देखते हैं कि नदियों में वगैरह जहाँ पानी का बहाव होता है वहां पर काई लग जाती है पत्थर के ऊपर, और उसका जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उससे काफी सारी चीजें आगे धकेली जाती हैं. तो सेम वे इस पाइपलाइन में भी ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम है, कुछ मूवमेंट के लिए कुछ मैकेनिज्म है. तो अगर समझो यहाँ पर अगर गर्भ तैयार होता है या फिर स्त्री बीज जो है वो है, तो उसे अंदर ले जाने की कैपेसिटी होती है. दैट इज ओनली ड्यूरिंग फर्टिलिटी डेज, मतलब जिस दौरान गर्भ धारणा के सबसे ज्यादा संभावना होती है, उस दौरान ये गर्भ जो है ये अंदर धकेलती है बच्चेदानी में लाने के लिए, और जिस दौरान गर्भ रहने के चांसेस सबसे कम होते हैं उस दौरान ये बाहर की तरफ धकेलती है. सो इसका ये ड्यूअल काम होता है जो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है. ये दोनों जो नली है, इसका एक ओपनिंग तो बच्चेदानी में है यहाँ पर, दूसरा जो ओपनिंग होता है वो ओवरीज के यहाँ होता है. ओवरीज माने बीज जहाँ पर बनते हैं. दोनों साइड महिलाओं में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में एक बीज कोश होता है. यहाँ पर हर महीने कुछ बीज तैयार होते हैं, साधारण एक 14वें-15वें दिन के आसपास, मतलब साइकिल के मिडिल में. तो उस दौरान यहाँ पर एक बीज जो है वो मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से बढ़ता है साइज में, एंड देन साइज में, एंड देन वहां से वो बीज निकलकर ट्यूब में आता है. जब वो बीज ट्यूब के इस रीजन में, इस भाग में आता है, जिसे हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एम्पुला कहते हैं, जब ये ट्यूब्स के एम्पुला रीजन में आता है, तो वहां आने तक अगर समझो स्त्री पुरुष में अगर यौन संबंध आते हैं, इंटरकोर्स अगर होता है, तो उस दौरान स्पर्म्स जो होते हैं, जो कि यहाँ डिपॉजिट होते हैं, यहाँ जमा होते हैं शुक्राणु, वही शुक्राणु इस डायरेक्शन में बढ़कर बच्चेदानी से होकर ट्यूब तक आते हैं, और इस ट्यूब में यहाँ पर शुक्राणु और बीज का मिलन होता है. छोटा सा गर्भ तैयार होता है, छोटा सा, जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं. देन अराउंड 4 से 5 दिन बाद वो गर्भ जो है वो धीरे धीरे ट्रैवल करके बच्चेदानी तक आता है. एंड बच्चेदानी में जो जगह सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है, एक जहाँ पर सबसे ज्यादा पोषण होता है, वो डिटेक्ट करता है एम्ब्रियो, एंड देन उस जगह जाकर ये चिपक जाता है एंड बढ़ना शुरू हो जाता है. Wow, that's a miracle, ma'am. Wow. You won't believe,
इस पूरे प्रोसीजर में जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात करते हैं, कंप्यूटर इतना होशियार है, एंड देन ऑल दिस टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग, इवन मेडिकल साइंस भी इतना जबकि प्रोग्रेस कर चुका है, फिर भी आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि गर्भ अपनी एक्यूरेट जगह जो है जहां पर उसे सबसे अच्छे से पोषण मिलेगा एंड डायरेक्शन जो है वो कैसे ढूंढ लेता है। कि आज अगर हम ट्रैवल भी करते हैं तो हमें जीपीएस की सहायता से जाना पड़ता है, एंड देन उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट देन बीज लिटरली आई वुड से इतना ये एक मिरेकल ही है, अजूबा ही है कि अगर बीज इस जगह पर हो, स्त्री बीज, तो ज्यादातर शुक्राणु ये भी यहाँ आने के बाद डिटेक्ट कर लेते हैं कि बीज इस ट्यूब में है या इस ट्यूब में है। दैट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे सीक्रेट करता है बीज, फेरोमोन्स, जिसकी वजह से ये शुक्राणु जो है उस साइड ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा शुक्राणु जब वो बीज को सराउंड करते हैं एंड अपना केमिकल सीक्रेट करते हैं, तो उस केमिकल से जो बीज का जो हॉल है, उसका जो आउटर कवरिंग है, सतह है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, एंड देन सिर्फ एक ही शुक्राणु, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लिटरली रेयर केस में होता है कि 2 शुक्राणु अंदर चले जाए। हमेशा एक ही शुक्राणु अंदर जाता है, एंड देन गर्भधारणा होती है, एंड देन 5 दिन लगते हैं लगभग यहाँ से यहाँ की दूरी तय करने में। हार्डली 5 सेंटीमीटर का गैप होता है यहाँ से यहाँ बच्चेदानी में आने के लिए, एंड देन बच्चेदानी में आने के बाद जब तक ये गर्भ जो है बना हुआ, जब तक लाइक अगर हम ऐसे मान ले कि 15 को 15वें दिन अगर गर्भ तैयार होता है, तो लगभग 20 या फिर 21वें दिन गर्भ यहाँ पहुंचता है बच्चेदानी में, और तब तक जो अंदर की जो लेयर है, बच्चेदानी जो है कंप्लीटली तैयार होती है उसको वेलकम करने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए। एंड देन जो सबसे अच्छी जगह होती है, जो गर्भ डिसाइड करता है, सोच लेता है, तय कर लेता है, तो उस जगह पे गर्भ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये 5 दिन जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये 5 दिन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब जब हम कंसेप्शन मतलब गर्भ धारणा के बारे में जब हम बात करते हैं, तब कहीं जाके हमें ये पता चलता है कि ओके, अगर ये सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन से ऐसे मेथड्स यूज करके, कौन से ऐसे पर्याय चूज करके हम गर्भ धारणा को रोक सकते हैं। तो ये जो रोकने के जो मेथड्स है, इसी को गर्भ निरोधक सुझाव जो बोलते हैं हम ये कहते हैं। एंड इस जो इजी अवेलेबिलिटी हम कहे, या फिर परमानेंट या फिर टेम्पररी माध्यम कहे, या फिर हम अवेलेबिलिटी तो है ही, बट उसके साथ साथ अगर हम कॉस्ट भी देखें, कौन सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सा इजीली कर पाते हैं, अगर हम पढ़े लिखे भी ना हो तो भी अगर हम फॉलो कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो सबसे प्रॉपर होगी, सबसे अच्छा उनके लिए वो सुझाव होगा। तो ये कंसेप्शन है, और इस कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ये ना हो कंसेप्शन, गर्भधारणा ना हो, इसलिए हम गर्भ निरोधक कुछ प्रबंध लाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, सिंपल right. Wow, ma'am, you have explained so well. I think it is understandable. It must be understandable to each and every person. मतलब I was able to literally understand whatever you were saying, your each and every word, and it was so good to know about all this, what happens in our body actually, है ना? So it's so nice. Such a great explanation you have given us all. And ये जितना आसान है, ये जितना इजी है, उतना ही मुश्किल भी हो जाता है कई बार, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस अब तक कोने कोने में नहीं पहुंचा है। तो अभी भी जो पुराने जो नॉलेज है, पुराने जो कंसेप्ट्स है, वो फॉलो होते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से हर कोई इसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से गड़बड़ी तैयार कर देता है, एंड देन उसको करेक्ट करना फिर हमारे हाथ में आ जाता है काम। So,
हम आगे इस लेक्चर में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम गर्भ निरोधक प्रबंध यूज कर सकते हैं, हम क्या क्या इसमें और अच्छे से प्रॉपरली इसको हम फॉलो कर सकते हैं, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। राइट मैम, राइट।